ये स्वामी भरत आनंद जी हैं on the right hand side and स्वामी Minesa. नरेश आनंद जी Minesa. Me. Yeah. तो ये हैं बड़ौदा से and they are followers of Dada Bhagwan of Gujarat. They are Dada Bhagwan, there is another Dada Bhagwan, which is a Sindhi Dada Bhagwan, but they are from Gujarat, and they have been. Bharat Anand ji is a engineer, civil engineer, and he gave up his business trade, to become follower of Dada Bhagwan, and he has been going around the world, spreading the word and teachings of Dada Bhagwan, And Naresh Anand ji हैं, तो वो हैं civil engineer, also agriculture scientist हैं और gold medalist हैं, तो उन्होंने भी अपनी प्रोफेशन को छोड़ के ये दादा भगवान जो हैं उनकी फॉलोइंग की है। तो ये दोनों भाई सारी दुनिया में घूमते रहते हैं। उनकी माता जी हैं यहाँ पे, she is about 96 years old, and she travels with them wherever they go. Now they've been traveling for last how many months now? 24th April. Yeah. 2 months. More than 2 months. More than 2 months. More than 2 months. more than 2 months, and you've got about 3 more months to go. No. Yeah, so they'll be traveling all over the world, spreading the word of Dada Bhagwan, the teachings of Dada Bhagwan. And so they're here with us in Ottawa for last 3-4 days, and they were at the seniors presentation last Friday, and some of you were unable to attend, and so we persuaded them that they should come and talk to us and talk to you all, so that and their presentation is going to be on loneliness and Fear. All All kind kinds of of fears. huh? All kind of fears. all kind of fears that we have in us. We talk about all kinds of fears in the sense that we don't know what's going to happen in the future and where we are going to go and what will be our state of health and so on. So we have all kinds of fear, particularly when we get older, the fears are even worse because we have all kinds of problems, So that Bharat Anand ji or Manish Anand ji दोनों इस पे बात करेंगे and they will enlighten us as to why do we feel fear of things, and how do we overcome those fractions that we experience, And as a starter, I mentioned that why that we were talking about early on when the discussion opened over here, that there is Bhagwan, and Bhagwan doesn't give you what you call For happiness. sukh or dukh. So Bhagwan is very neutral and he will always be kind to you. Now, Excuse me. the They are thing is, also known as Apti Putra. Anji, They are known as Aptaputra. Apta Putra means Apta preachers of God. yeah. Aptaputra. We are known as, you say, generally people, they say saint, sadhu like that. We met Dada Bhagwan, and Dada Bhagwan is self-enlightened person. So, in our scripture, any self-enlightened person is known as Apta Purus. Apta means trustworthy. You can put full trust on him for your vyavhar, for your sansar, and for liberation. और हम सब तैयार हुए दादा भगवान के पास. So we are known as Apta Putra. So when we were studying in college, school, at that time we met Dada Bhagwan and we got the vision, inner vision from Dada Bhagwan. And after gaining that inner vision, we feel so blissful, so happy within. So it becomes the mission of our life that the happiness, the bliss we are enjoying, the whole world should enjoy that thing.
So we all dedicated our whole life. So we are all celibate. And when we met Dada Bo at that time, I was 21 years old, 22 years old. Some are 16, 18 years old. So it's a mission. That, and for that mission, we can say okay, we did some work, we completed our study, we did some job or some business, and then we renounced everything. So we are all Bal Brahmachari, we are celibate. So we are sadhu, but our dress is simple. Because when your dress is simple, nobody give you respect. But when you talk with them and there will be change in them, then the respect from within will come. So Dada Bhavan was telling kids, I don't want to change your clothes or anything, so that just seeing your clothes, somebody will respect you. But not like that. But you talk with them, you solve their problem, and once their problem is solved, automatically they will respect like that. So we are known as Apta Putra. So anyway, yesterday in Tenure, day before yesterday, Friday. The topic was fear and isolation. It's a big crowd was there, around 100, and they really enjoyed. Everybody enjoyed. There were about 80 people there. 80. So they all enjoyed, and they gave us open invitation that anytime you come to Ottawa, and if on Friday you are here, then without any hesitation you have to visit us, and we will adjust our timing and everything. So he is telling that the same topic you repeat now, but this is a interactive satsang, interactive discourse. So anytime, any question you can ask. My- For us, there is no problem. My question was that why does, if the Bhagwan is there, why does it give us pain and suffering? I mean, Correct. So your question, very good question, that why God is giving suffering. If God is kind, then why He should give suffering? सबको सुखी देना चाहिए. So God is there. In the very presence of God, this world is going on. If God is not there, this will not work. If God is not present within you, then you will be known as a dead body. Right? Simple thing. So in the very presence of God, all the activities are going on. But in reality, God is not involved in any activity. Like a catalyst. In chemistry, two elements are there. And if catalyst is there, then the reaction will happen and the third thing will arise. Same way in the presence of God, everything is going on. But God is not at all involved. Like say the light is there. In this light we are sitting here. We can do satsang, we can do some good things, and we can also quarrel, we can also fight. Now say in this light, if somebody kills somebody, shoots somebody, then police will not come and catch this light. Oh, because you are here, that's why he killed that person, he shot that person. Same way, God is there, God is giving light. And in that light, whatever you want to do, you do it. You are whole and soul responsible. God is not responsible because God is not involved. God's involvement is not there. So then why sufferings are coming? So we are Hindu. We do believe in Sanatan Dharma. Correct?
We may be believing in somebody is Vaishnava, somebody is Saiva, somebody some yoga, some Gita like that. There are so many sections, there is no problem. But basically we are all believing in Sanatana Dharma. Simple thing. And how our Sanatana Dharma is different from other religions? By two ways. One, we do believe principle of karma. Though we don't understand, but deep rooted, we do believe in rebirth, we are in principle of karma. And second thing, we believe in reincarnation, rebirth. So these two things, other people, other religions, they don't believe. And there are so many things, looks like it is common in all the religion. But our Sanatana Dharma, our Hindu religion, when people say about Gita, oh, it's a way of life, how to live life, Gita is showing how to live life, and we feel happy, oh, very good, very good. We are something. But if you want to understand, really speaking, our religion is something different, not at gross level. It is taking you to the subtle level. So our religion is a vision, drashti, vision to attain liberation. You understand? Our religion is different. It's a vision to attain liberation. But because we are not doing the, we limited it to some things like, say we are doing satsang regularly, we are going to temple regularly, we are worshipping God regularly, we are doing bala, we are doing fasting, we are doing vrat tap, and we say, oh, this is our religion. Actually, all these are means of religion. They are all means of religion. They are not religion. And when it is a means of religion, means you have to use this means, this instrument whenever it is required. But religion is something to achieve, not to do. अब बात कर रहे हैं, धर्म करने की चीज नहीं है, धर्म पाने की चीज है. एंड व्हेन आई से कि धर्म पाने की चीज है, then immediately the question will arise कि क्या पाने का है? मुक्ति. कैसे पढ़े? हाँ, अशोक जी बताया मुक्ति. हाँ नहीं बराबर, एकदम 100% करेक्ट आंसर है कि मुक्ति पाना है, 100% करेक्ट है. मगर क्या पाना है वो समझने जैसा है. आपने धर्म पाया है, आपने जो धर्म पाया है तो संसार के सभी जीवों के साथ, with all living beings, especially all human beings, you will have oneness. सबके साथ अभेदता रहती है तो समझना कि आपने धर्म पाया है, नहीं तो आप धर्म करते हैं. ये बात समझ में? हमें भेद खड़ा नहीं होता. चलो हम है यहाँ कनाडा में तो वी आर इंडियन, वी आर सिंधी, वी आर इंडियन. एक भेद खड़ा, वी आर हिंदू, एक भेद खड़ा हो जाता है. और भगवान को भेद होगा? सिंपल बात, भगवान को भेद होगा? जब भेद होगा तो वो भगवान ही नहीं है. मेरी बात समझ में जो मैं कहना चाहता हूं? क्या आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश. ओम प्रकाश. तो आपको ही फोन किया था नहीं? ओम ओम बोलते थे तो बराबर है. तो ओम प्रकाश जी, जस्ट आई एम आस्किंग यू वन सिंपल क्वेश्चन कि गॉड इज पार्शियल और इम्पार्शियल? गॉड इज पार्शियल और गॉड इज इम्पार्शियल? इम्पार्शियल. बराबर, सिंपल क्वेश्चन. और आंसर भी इतना सिंपल कि इम्पार्शियल. तो मानो कोई कृष्ण भगवान का भक्त है और भगवान राम के मंदिर में चला गया, तो और फिर भगवान राम को हाथ जोड़ के मांगेगा
कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा सॉल्व कर देना, मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो भगवान राम ऐसा बोलेंगे तो भक्ति तो कृष्ण की करता है, और मारने के लिए मेरे पास जाना, जा उनके पास जा, ऐसा बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे तो वो भगवान ही नहीं है। ये बात समझ में? सो गॉड इज इम्पार्शियल। हम क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान के लिए कि कृष्ण भगवान पांडवों के पक्ष में थे और कौरवों के अगेंस्ट में थे, बोलते ही नहीं बोलते? हाँ या ना तो बोलो, उनके तो बहुत पक्के, हाँ भी नहीं बोलते ना भी नहीं बोलते। मैं सुन रहा हूँ। No. तो हम कैसे बोलते हैं कि भगवान कौरवों के विरुद्ध में थे और पांडवों के पक्ष में थे, ऐसा बोलते हैं? जी। बट बेसिकली गॉड इज ऑलवेज इम्पार्शियल। जो पार्शियल है तो उनको भगवान बोल ही नहीं सकते। तो हमारी लैंग्वेज करेक्ट है कि भगवान निष्पक्ष है, और फिर बोलते हैं क्या है कि भगवान ने पांडवों का पक्ष लिया और कौरवों के अगेंस्ट में थे। तो कैसी बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम भगवान को जानते ही नहीं है। हम भगवान को जानते ही नहीं है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, 100% भक्ति करते हैं, सिंसियरली विथ फुल डेडिकेशन भक्ति करते हैं, हार्टली भक्ति करते हैं, ना नहीं बोलता हूं, मगर माने हुए भगवान की भक्ति करते, पहचाने हुए भगवान की भक्ति नहीं करते। तो मेरा बोलने का कड़क लगेगा बस समझने के लिए, आपको ख्याल में है? Yeah. हमें बचपन से जो बताया ये भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, बच्चा है, थोड़ा बड़ा होगा हमको पता चलेगा पिक्चर देख के या मूर्ति देख के कि हाथ पे धनुष्य है तो भगवान राम है, हाथ पे बंसी है तो कृष्ण भगवान है। फिर थोड़ा बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो शास्त्र पढ़ के, मीन्स महाभारत रामायण पढ़ के, सुन के, या उनकी सीरियल देख के उनका पूरा स्टोरी पता होगा। फिर वो 50, 60, 70, 80 का होगा, इतना ही पता होगा भगवान के बारे में। मैं सबने बताया और उसने मान लिया। तो भक्ति किससे करता है? माने हुए भगवान की भक्ति करता है। बाहर जाके मत बोलना, झगड़ा हो जाएगा, मुझे एक समझने के लिए। और भगवान ने क्या बताया कि आप मुझे पहचान कर भक्ति करेंगे तो आपके भीतर के राम प्रकट हो जाएंगे, और आप मुझे मानकर भक्ति करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगी, आगे जाके संसार के सुख मिलेंगे। मगर मुझे पहचान के भक्ति करेंगे तो फिर आप मेरे जैसे हो जाएंगे। मगर जगत में किसी को भगवान तो होना ही नहीं है। असोगे देख, भगवान तो होना नहीं है। टेलीफोन को पूछो, ओम आपको होना है भगवान? हाँ या ना बोल रहे, ऐसा नहीं, सीधा मुझे आंसर दे दो, डोंट कंफ्यूज मी। I have to know myself first. Huh? I have to know myself first. But when you realize yourself, when you realize your true self is God. इसलिए मैं पूछूंगा, आपको भगवान बनना है, आपका नाम ही है ओम, तो भगवान हाँ मैं भगवान ही हूँ, ऐसा नहीं। विथ रियलाइजेशन। But I don't realize हाँ, विथ who I रियलाइजेशन। am. हाँ, करेक्ट। सो विथ रियलाइजेशन वन हैज टू से। तो किसी को पूछेंगे ना कि भगवान बनना है तो वो सोच में पड़ जाएगा, हम भगवान कैसे बन सकते? भगवान तो कितने बड़े, भगवान तो ऊपर है, कितने बड़े। हम सच्चे भक्त हो जाए तो भी बहुत है, हम सच्चे इंसान बन जाए तो भी बहुत है। मगर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सनातन धर्म में मानने वाले हम हैं, तो हम हिंदुस्तानी के लिए हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ इज टू रियलाइज हु एम आई। मैं खुद कौन हूं वो पहचानना, वो हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है। और वो नहीं पहचाना और आपने बहुत पैसा कमाया, बहुत अच्छे काम किए, सबको हेल्प भी किया, तो आपकी पुण्य हो जाएगी, अच्छी जगह पे जन्म मिलेगा, सुख मिलेगा। मगर मनुष्य जन्म सार्थक हुआ ऐसा नहीं बोल पाते। समझ में? तो कैसी बात है
कि ये ओम प्रकाश तो आपका नाम है, योर नेम इज ओम प्रकाश. So what you will say, my name is Om. Now when you say my name is Om, then who are you? If Om Prakash is your name, then who are you? Because wherever you say my, that my is always separate from I. तब बोले मेरा नाम. So when you say my name, then who are you? Soul. वो बात भी गलत नहीं है, हाँ? Soul. सोल, अच्छा नहीं, बात 100 वो भी सही बात है कि सोल, मगर आपने जान लिया कि मैं सोल हूं, आत्मा हूं, और अभी आप यहाँ के सोसाइटी में घूमते हैं, आपके आगे दूसरे 2 लोग जाते हैं और आपके बारे में बात करेंगे कि ये ओम प्रकाश जी है, ओम जी है, तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं मगर उनका कोई ठिकाना नहीं है. उससे बहुत संभाल के रहना, ऐसे लाइटली बात कर रहा हूँ, उनसे संभाल के रहना. तो आपको क्या होगा, ऐसा है कि मैं सोल हूँ, वो तो ओम प्रकाश की बात कर रहे हैं. आपको ऐसा होगा मेरे लिए ऐसी बात करे, मैंने इतना काम किया, इतना अच्छा करता हूँ, उनके लिए मैंने कभी गलत नहीं किया, उनको इतना हेल्प किया, मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं. दैट मीन्स बाय वर्ड यू से आई एम सोल, बट बाय बिलीफ, आपकी बिलीफ में क्या है कि मैं ओम प्रकाश हूँ, उनका नाम तो एक विषय बोलो. तो बिलीफ में क्या है, बिलीफ में है कि मैं आत्मा हूं, बिलीफ में नहीं है. बिलीफ में तो ऐसा ही है कि मैं ओम प्रकाश हूं, जो कि आपका नाम है कि मैं ये हूं, कि मैं ये अशोक जी हूं. तो भगवान ने क्या बताया कि आप सही में ओम प्रकाश है नहीं, सही में है आत्मा, सोल है, बट एट प्रेजेंट योर बिलीफ इज इन ओम प्रकाश. और बचपन में नाम दिया गया ओम प्रकाश, और आपने सुना और सब लोग बोलते हैं ओम ओम ओम, तो आपको क्या हो जाता है कि मैं ओम प्रकाश हूं. मीन्स ये बिलीफ क्रिएट हो जाती है, ये मान्यता खड़ी हो जाती है. मान्यता पहले थी नहीं, खड़ी हो गई. सो इन सिंपल वे यू कैन से ओम, मैं ओम प्रकाश हूं, इससे फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ, पहली अज्ञान मान्यता, Okay. इट्स अ फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ. Please tell that. और Yeah, everything okay. और ये रॉन्ग बिलीफ है, आपको सोचा, क्योंकि आप ओम प्रकाश है नहीं, पर आपने मान लिया कि मैं ओम प्रकाश हूं. सो इट्स अ बिलीफ, क्रिएटेड बिलीफ, और वो भी कैसी है, इट्स अ रॉन्ग बिलीफ, क्योंकि सही में आप है ही नहीं. So it's a basic, fundamental, first wrong belief that I am Om Prakash. So if somebody asks me, who are you? हाँ, वो तो आपको बोलना पड़ेगा. What's your name? हाँ, वो सब बात करता हूँ, बराबर है. परफेक्ट, ऐसा प्रश्न करना चाहिए. You must ask. तो क्या है कि कोई आपको पूछे कि आप कौन है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, भाई ओम प्रकाश, ऐसे ही बताना पड़ेगा. आप बोलेंगे मैं आत्मा हूं, तो लोग क्या बोलेंगे कि मेंटल हो गया, उनको ले जाओ हॉस्पिटल में, पागल है. पागल हो गया, ये पागल हो गया, हॉस्पिटल में लेके जाओ. तो ये कैसी बात है, बिलीफ की बात है. बोलते हैं कुछ, उनके प्रॉब्लम नहीं है. हम बोलते हैं सोल, तो भी कुछ पैदा नहीं होता है, पर आपकी बिलीफ है कि मैं सोल हूं, आपकी बिलीफ है कि मैं सोल हूं, और फिर आप बोलेंगे कि भाई हाँ मेरा नाम ओम प्रकाश है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर भीतर बिलीफ क्या है, सोचा, कोई आदमी है, वो कलेक्टर का वो प्यून है, वो कलेक्टर नहीं है, वो बोलेगा मैं कलेक्टर हूं, तो वो रॉन्ग बिलीफ हुई कि नहीं हुई, वो है ही नहीं, और वो खुद भी जानता है कि मैं नहीं हूं. तो वो बोलता है, वो कोई सामने क्रॉस करेगा ना, तो उनको भीतर फियर भी खड़ा हो जाएगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा. तो बोलने में प्रॉब्लम नहीं, बिलीफ, आपकी बिलीफ कहाँ है, आपकी मान्यता कहाँ है. तो हम कितना भी बोले कि मैं सोल हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मगर आत्मा होकर आत्मा बोले तो काम हो गया. और पुस्तक पढ़कर मैं आत्मा बोलो तो काम का नहीं है. वो तो कोई ऐसे दुख के संजोग आ जाएंगे तो आप विचलित हो जाएंगे. मेरी बात समझ में,
इफ यू से आई एम सोल, ओके करेक्ट। अभी आप बोलते आई एम सोल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी बात तो 100% करेक्ट है, मगर आपकी बिलीफ में है, बिलीफ में नहीं है। इससे क्या होगा, कभी कुछ दुख आएगा, कभी कुछ अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आएंगे, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आएंगे, देन यू विल इमीडिएटली गेट डिस्टर्ब फ्रॉम विद इन। और जो आत्मा है तो भीतर से डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए। तो अभी डिस्टर्ब नहीं होना है, तो क्या अहंकार से नहीं होने का? तो अहंकार से नहीं, सहजता से, सहजता, नॉर्मलिटी में रहकर नहीं होते तो उनका काम होता है। तो मेरी सिंपल बात कितनी थी कि मैं ओम प्रकाश हूं, ये रॉन्ग बिलीफ, ये फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ हुई। और ये रॉन्ग बिलीफ खड़ी है, बेसिक फंडामेंटल रॉन्ग बिलीफ, तो बहुत सारी दूसरी रॉन्ग बिलीफ खड़ी हो जाती है, चिपक जाती है। जैसे मैं इतनी उम्र का हूं, मैं ये पढ़ा लिखा हूं, मैंने ये बिजनेस किया, मैंने ये जॉब किया, मैं अभी रिटायर्ड हूं, मैं इसका फादर हूं, इसका ग्रैंडफादर हूं, इसका चाचा हूं, इसका मामा हूं, इसका हस्बैंड हूं, सब हो जाती है, इसका फ्रेंड हूं। ये सारी सबऑर्डिनेट रॉन्ग बिलीफ कब चिपक जाती है? ये फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ है तभी। तो ये फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ को क्या बोलते हैं कि शास्त्र में ऐसा बताया कि आपको मोक्ष में जाना है तो ये अज्ञानता की वजह से बंधे हुए हैं। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस यू आर बॉन्डेड, यू आर एंटेंगल्ड इन दिस संसार। तो भगवान ने शास्त्र में तो बता दिया, तो इनको सिंपल भाषा में समझना है अज्ञानता क्या है। तो अज्ञानता, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े वो अज्ञानता नहीं है, मुझे संस्कृत नहीं आती वो अज्ञानता नहीं है, कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी वो अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता मीन्स इग्नोरेंस। तो आप सही में ओम प्रकाश है ही नहीं, मगर अभी आपकी बिलीफ में क्या है कि मैं ओम प्रकाश हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो आप जानते नहीं है, वो आप जो नहीं है वो आपकी बिलीफ में पक्का बैठ गया है, इन योर स्टॉन्च बिलीफ कि नहीं मैं ओम प्रकाश ही हूं। बराबर है। अभी आपको कोई कितना भी बोलेंगे नहीं आप ओम प्रकाश नहीं है तो क्या होगा? आप उनकी बात सुने, कुछ बोलेंगे नहीं, कि भीतर तो ऐसा ही रहेगा नहीं मैं ओम प्रकाश ही हूं। तो भगवान ने क्या बताया कि आप सही में जो है वो नहीं जानते हैं, और जो नहीं है वो मान लिया, इट्स इगोइज्म, वो अहंकार है। क्योंकि आप अपनी सही जगह पे नहीं बैठे, दूसरे की जगह पे बैठ गए, तो उनको इगोइज्म बोलते हैं। तो ये अज्ञानता है ना, अज्ञानता और कुछ नहीं है। अज्ञानता मींस इग्नोरेंस, सेल्फ इग्नोरेंस, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो अज्ञानता कौन सी अज्ञानता? सेल्फ इग्नोरेंस। हम खुद कौन है वो नहीं जानते हैं, उनको अज्ञानता होता है। और हम खुद कौन है वो नहीं जानते, जो नहीं है वो मान लिया, वो इगोइज्म हो गया। सो बिकॉज ऑफ दिस इगोइज्म, at each and every moment in this sansar, you are adding new karma in your karmic account. And only there are two types of karma, one punya karma, one pap karma. So you are adding either pap karma or punya karma in your karmic account. और क्या होगा? पूरी लाइफ में बहुत पूरा बड़ा स्टॉक बना लेंगे, then in the next birth again you will enjoy out of that stock. तो पुण्य पाप का जो स्टॉक है ना वो लेके जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में वो सामने आता है, तो थोड़ा पाप भी आएगा पुण्य भी आएगा, बराबर है ख्याल में। तो जब पाप कर्म का उदय आता है ना तो ऐसे गिर जाते हैं, और भगवान बीच में नहीं आते। और पुण्य कर्म का उदय आता है तो सामने से आके कोई हेल्प कर देता है, इसमें भी भगवान नहीं आते, क्या ना। तो ये जगत है ना, इट्स द प्रिंसिपल ऑफ कर्म। तो आपने ही अज्ञानता की वजह से, बिकॉज ऑफ सेल्फ इग्नोरेंस, पिछले जन्म में जो भी कर्म बांध लिए, पाप या पुण्य, इन दिस बर्थ यू आर एंजॉइंग और सफरिंग दैट कर्म, एंड साइमल्टेनियसली
you are charging new papa or punya karma because of this ignorance, because of this belief that I am Om Prakash. वो अज्ञानता की वजह दूसरे बांध लेते। तो ऐसे आपका संसार है, वो संसार का वो लाइफ और डेथ का साइकिल चलता ही रहता है। तो टू फ्रैक्चर दैट साइकिल, टू ब्रेक दिस साइकिल इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। वो हमारी जिंदगी का अंतिम ध्येय। तो धर्मोपाय कब बोल सकते हैं? तो शास्त्र की परिभाषा को बाजू में रखो, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द स्क्रिप्चर। बट इन सिंपल लैंग्वेज, इफ योर वरीज आर टोटली गॉन, तो आपको मानने का आपने धर्म पाया है। Now when I say your worries is totally gone, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पैसे, हेल्थ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं। तो circumstances of worries are there. Circumstances of worries will be there, but you will not have any worry within because of the clear vision, right vision of आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी। आपके पास सही समझ है, सही दृष्टि है, तो आपको चिंता नहीं होगी। फियर भी नहीं है। हाँ, फियर भी नहीं। तो कैसा है कि रूट कॉज ऑफ इगोइज्म, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ईगो? चिंता। मान्यता है। रूट कॉज ऑफ वरी, Belief system. मान्यता। रूट कॉज ऑफ वरी क्या है? मैं करता हूं, आई एम डूअर। इफ आई विल नॉट डू, देन व्हाट विल हैपन? इफ आई विल नॉट अर्न मनी, देन हाउ द हाउस विल गो रन? तो घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? तो वरी का रूट कॉज है डूअरशिप, दैट आई एम डूअर। और दूसरा क्या है, हम लोग बोलते हैं, मुझसे तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलने में बहुत मीठे हैं। हम क्या बोलेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में, सब भगवान के हाथ में, ऐसा बोलते हैं। तो बोलेंगे कि भगवान के हाथ में है, मगर भीतर मानते हैं? हम जो मुंह से बोलते हैं, भीतर मानते हैं? माना बिजनेस कर रहे हैं और आपको नया बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छा जम गया, अच्छा हुआ, तो किसी को बोलेंगे तो भगवान की कृपा से सब बोलेंगे, मगर भीतर क्या रहेगा? ये तो मेरी विजन थी, मेरा मैनेजमेंट था, और मैं ही था ना, इसलिए इतना प्रॉफिट हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो हम बोलते हैं कि सब कुछ भगवान करते हैं, मगर ऐसा भीतर मानते ही नहीं है। So there is a contradiction what we speak and what we believe. And as far as this contradiction is there, you can't progress on the path of religion. Not path of liberation, path of religion. Path of liberation तो आगे की बात है, मगर धर्म के मार्ग पे भी जहां तक कॉन्ट्राडिक्शन है, आप नहीं आगे बढ़ सकते। मेरी बात समझ में? तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। Simply you have to fracture your wrong belief and set the right thing. और right thing set हो गया, बाद में बाहर कुछ चेंज नहीं होता है। Outside nothing will change, but from within everything will change. तो वेदांत में उसको क्या बोलते हैं? There are two kinds of drishti, vision. One बहिर्मुखी और another अंतर्मुखी. One extrovert and an introvert, like that. तो दृष्टि की वैल्यू है, आप क्या करते हैं उनकी वैल्यू नहीं, दृष्टि की वैल्यू है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आपने नई मर्सिडीज गाड़ी ले ली, या तो टेस्ला टॉप मॉडल ले लिया आपने, ऑटो पायलट मॉडल अच्छा ले लिया। अभी आप डिलीवरी लेके घर पे आ रहे हैं,
और फिर आप सोचेंगे जब फोन भी कर दे चलो मैं नजदीक आ गया हूँ, तो आपके धर्मपति भी आ जाएंगे, चलो ये पूजा वूजा करते हैं। हिंदू लोग है तो कार का भी 4 लाख का वो कर टीका करेंगे, वो सब स्वस्तिक ड्रॉ करेंगे, ऐसा करेंगे। मगर पार्किंग के लिए गए, वो थोड़ी नई गाड़ी थी, जजमेंट नहीं रहा, तो वो पिलर के साथ थोड़ा स्क्रैच हो गया गाड़ी को, तो क्या होगा? आपको कुछ होगा? ओम जी आपको कुछ होगा? दुख होगा। दुख होगा? दुख तो गाड़ी को होना चाहिए, गाड़ी को लगा है। दुख तो गाड़ी को होना चाहिए, गाड़ी को लगा है। जिसको जब पैसा लगेगा तो दुख होगा। नहीं, वो तो इंश्योरेंस, वो तो आपका इंश्योरेंस भी है। नहीं, उनकी ऐसी बात नहीं है, आपका इंश्योरेंस भी है गाड़ी का, आपको पैसा भी नहीं लगने वाला है। बात समझ? आपको पैसा भी नहीं लगने वाला है क्योंकि आपका इंश्योरेंस है। मगर गाड़ी, वो स्क्रैच गाड़ी पे नहीं रहता है, अपने दिल में हो जाता है। तो भगवान ने सिंपल क्या बताया कि स्क्रैच गाड़ी पे रहे और आप गाड़ी घुमाते हैं तो दृष्टि अंतर्मुखी है, और ऐसा स्क्रैच हो गया और स्क्रैच आपके दिल में हो गए, दिल में हो गया तो आप बहिर्मुखी दृष्टि है। तो गाड़ी के साथ क्या एंजॉय करते, क्या क्या सुख भोगते, उनके साथ दृष्टि को लेना देना नहीं है। मगर वो स्क्रैच दिल में नहीं हुआ, गाड़ी पे ही रहा। गाड़ी तो चिल्लाती भी नहीं है, गाड़ी कुछ बोलती नहीं, जिनको स्क्रैच हो वो तो कुछ बोलती नहीं है, और हम दुखी दुखी हो जाते हैं। कितनी अच्छी। तो हमसे गाड़ी अच्छी नहीं है। When it scratches, it will speak. The guy. हाँ, वो थोड़ी आवाज होकर बंद हो जाती है। गाड़ी तो लाइफलेस है, हमारे में तो life- हाँ हाँ हाँ, बराबर। हम हिंदू लोग कैसे हैं? नहीं भाई बताओ, हम हिंदू लोग कैसे हैं कि घर में पति पत्नी के बीच में या घर वालों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं कि तो घर में बर्तन है तो आवाज तो करती है, ऐसा बोलते हैं। अभी तो नहीं बोलते, अभी के बच्चे को ऐसा पता है क्योंकि अभी तो ग्लास का टूट जाता है ना। मगर पहले ऐसा बोलते हैं, बर्तन है तो थोड़ी आवाज तो होगी, घर में कुछ झगड़ा हुआ आसपास के में तो ऐसा होगा, घर बर्तन है तो कुछ झगड़ा तो होगा। मगर बर्तन तो गिरते हैं नहीं तो 2 मिनट में, एक आधी मिनट में उनकी आवाज बंद हो जाती है, और ये तो टकराते हैं ना शायद, जिनकी आवाज आती रहती है। तो बर्तन से भी गए हम। आप बोलते उसमें जान नहीं, हमारे जान है, तो बर्तन से भी हम गए। समझ में मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ, पॉइंट आपको पॉइंट नोट करने का है। हम बर्तन से भी गए, अरे हम हिंदुस्तानी है, हम मनुष्य है, हमारा कैसा होना चाहिए। तो मैं जो बात कर रहा था, धर्म पाया कब बोल सकते हैं कि आपके भीतर रहे, आपकी चिंता बंद हो जाए तो आप समझ कि आपने धर्म पा लिया है। अभी दूसरी तरह से बताऊं कि धर्म पाया कब बोल सकते हैं कि आपके भीतर रहे हुए क्रोध, मान, माया, लोभ, ये राग द्वेष है, जेलसी है, वो सब भीतर के शत्रु, अंदरूनी दुश्मन डे बाय डे कम होते हैं, वो चारों चार कम होते हैं, तो समझना कि आपने धर्म पाया है, नहीं तो आप धर्म करते हैं। बड़ा, मैं तो आपको थर्मोमीटर दे देता हूं, मैं नहीं बोल सकता हूं कि आपने पाया है या आप करते हैं, मगर एक थर्मोमीटर है कि डे बाय डे एक तो चिंता बंद हो जानी चाहिए। मगर अब ये कलयुग है, तो कभी यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम होती है ना, तो थोड़ा पेपर स्टिक निकल गया तो क्या करते हैं, ग्रेस मार्क सबको दे के ऊपर चढ़ाते हैं। तो भगवान ने क्या बताया कि कलयुग है तो चिंता बंद नहीं हुई, पर डे बाय डे कम भी होती जाती है ना, तो भी आपने धर्म पाया। या डे बाय डे आपके क्रोधमान में निकल नहीं गए, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन इट इज रिड्यूसिंग टू 0, तो भी आपने धर्म पाया है। और तीसरी तरह से क्या बताया कि आपको संसार में रहते हुए घर में या बाहर किसी के साथ टकराव नहीं होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद नहीं होता है, तो समझ लें कि आपने धर्म पाया है, नहीं तो आप धर्म करते हैं। उनकी बात तो सिंपल है, एक्सेप्ट होती है, Correct. सही तो लगती है।
क्योंकि ये इनका प्रमाण है, थर्मोमीटर है। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि किसी ने धर्म नहीं पाया है, क्योंकि सब करते तो है। इतना मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, माला फिराते हैं, कोई योगा भी करता है, कोई फास्टिंग करता है। तो ऐसा में कैसे बोल सकते धर्म नहीं करते? धर्म तो करते हैं, मगर धर्म पाने का है। वो पाया कितना है वो सबको खुद को पता चलता है, दूसरे को पता नहीं चलता है। कभी पूछते जाओ। और एक बात है, भगवान की जो बात की ना, भगवान को पहचानने का है। तो माने हुए भगवान और पहचाने हुए भगवान की क्या बात है? सिंपल बात है, आपको बताओ कि कृष्ण भगवान है, हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं। There is nothing wrong in it. भक्ति तो करनी चाहिए भगवान की, there is nothing wrong in it. वो तो बहुत अच्छी बात है, रॉन्ग नहीं, बहुत अच्छी बात है, गुड थिंग। तो मैंने क्या बताया, भगवान को पहचान के भक्ति करना, तो हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, मगर बोलते क्या है कि भगवान, एक और हम बोलते हैं कि भगवान ने अधर्म का विनाश किया और धर्म की स्थापना की, ऐसा बोलते हैं। कृष्ण भगवान ने अधर्म का विनाश किया और धर्म की स्थापना की। तो हम बोलते हैं कि अधर्म का, Could you say that in English, please? हाँ, लॉर्ड कृष्ण डिस्ट्रॉयड अधर्म एंड एस्टैब्लिश धर्म, ऐसा बोलते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कैसे बात है कि कृष्ण भगवान ने अधर्म का विनाश किया, he destroyed अधर्म, but how, that we don't know. We think he used Arjun and destroyed all the enemies, अधर्मी, like that. ऐसा है भगवान, गॉड इज गॉड। भगवान सबका हित देखते हैं, सबका भला देखते हैं। तो भगवान कैसे होते हैं कि जो सज्जन है उनका भी भला देखते हैं और दुर्जन है उनका भी भला देखते हैं, तभी तो उनको भगवान बोलते हैं। तो हम बोलेंगे क्या? तो दुख सुख क्यों देते हैं फिर? वो तो आगे बात हुई नहीं। दुख सुख तो आपका आपके खुद के ही अज्ञानता से बंधे हुए कर्म है, उनका परिणाम है। वॉट एवर दुख यू आर सफरिंग नाउ or whatever happiness you are enjoying now is the result of your own past karma, effect of your own past karma. So God is not interfering in that thing. भगवान किशन थे ने, उनको भी तो प्रारब्ध कर्म नहीं आया था। कोई जंगल में गए बैठे थे और वो उसने तीर मारा था, एरो। तो क्या था, भगवान थे तो उनको भी बाण तीर मारा। तो भगवान का कर्म फल था, इफेक्ट ऑफ द पास्ट कर्म। भगवान राम को 14 साल वनवास में जाना पड़ा, वो क्या था? इफेक्ट ऑफ द पास्ट कर्म। Even God can't change his own past karma, then how you can change it? I am right now for last 2 months suffering from sciatica. It probably will go on for a while. So it's because of the past karma. past karma. And you There's can nothing I can do about it. Yeah, you can't do anything. But because you told me, Omji, just I telling, can stand, just I can stand up to No, just lower body. just telling you like Yeah. it's a sciatica pain. Please. Are you sure? Sciatica. Doctor said it's a sciatica pain. Yeah. कोई बात नहीं, वो तो आपका चला जाएगा, 100% चला जाएगा। ओके, बट इट्स, आपने ये 2 महीने तक सफर किया ना, इट्स अ इफेक्ट ऑफ द पास्ट कर्म। I was talking about similarly my case when I had a fall
and I'm still suffering for the last 6 months. And they tell me it will take another 2 years or so for me to get back to normal. Is that also the No, if somebody is That's telling the past karma. somebody is telling you that it will take 2 other years to be normal, back to be normal, the person telling is normal thing. But if it will affect you, oh, still 2 more years, that's your suffering is the effect of past karma. No, but I felt by myself. Nobody made me fall. No, nobody. You see, your fall, your fracture, your pain is the effect of past karma. But, oh, still I have to suffer, how long I will have to suffer? That is all because of the wrong understanding. If you have correct understanding, then you will be out of this suffering. So past karma was the one which caused me to Past- fall down and hurt myself. That is past karma. The pain is past karma. The limitation is past karma. But that at the worries at mental level is not past karma. And what is that? Psychology. Hmm? Psychology. Psychology. In gross language you can say psychology, correct? Psychology. It's all psychological effect. The world is a psychological effect only. Correct? World is a psychological effect only. Now when you say I am soul, and if you realize that you are soul, then you will come out of all the psychological effect. Simple. Just I am giving you one example. Let's say you are traveling from from here to India, you are flying from here to India. So after landing in Delhi or Bombay, what you will say? Oh, it's a long flight. I am tired. Then immediately it will create psychological effect. But if you say, oh, I was just relaxing in the plane, I enjoyed drinks and all that thing, I enjoyed snacks and all that thing, I move around in the plane, I talk with people, and I enjoyed. And plane came from Canada to India, and I was just sitting and relaxing. तो आपको psychological effect नहीं होगी, ख्याल में? But if you say I travel, तो आपको वो ज्यादा इफेक्ट होगी. वो मल्टीप्लिकेशन होता है. और ऐसा रहेगा ना कि प्लेन ने ट्रैवल किया है तो थकान तो प्लेन को लगनी चाहिए, मुझे क्यों लगनी चाहिए? ओम जी आपको समझा? प्लेन फ्लाइट तो प्लेन मस्ट बी टायर्ड. व्हाई यू आर टायर्ड? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. You are just relaxing and you are enjoying. You are seeing movie, you are eating snacks and all that thing, you are drinking coffee and all that thing. Actually you are enjoying. You are not doing any work, you are enjoying. And you say, oh, I traveled from Canada to US, a long flight, long haul, and I am tired. So immediately the psychological effect will be there. So that's why the whole world is a psychological effect. अभी देखो मैं आपको बताऊं. The whole world is what, sorry? Psychological effect. Okay. So And when you realize- love to take positively, things comes to your Correct. In And when you realize that you are pure soul, Yeah. then you will come out of all the psychological effect. in other words, it's your thinking. Not thinking. No, it's supposed In gross language you can say thinking, but really is not thinking. Because thinking process, whatever thoughts sprout in your mind, you can't control it. Correct? Means it is the effect of the past karma. So effect of past karma is not psychological effect. मगर मैं इनकी बात करूँ, उनको फ्रैक्चर हुआ तो क्या बोलेंगे? मुझे फ्रैक्चर हुआ. भाई फ्रैक्चर तो 2 महीने पहले हुआ था. And what is the natural process? As soon as there will be a fracture, immediately from the very moment it will start healing. और जॉइन आने का शुरू हो जाएगा तुरंत. बट 2 महीने के बाद में हम क्या बोलेंगे? मुझे फ्रैक्चर हुआ.
बात समझे? तो फिर वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट खड़ी हो जाती है. एंड व्हेन यू से ओ इट्स हीलिंग नाउ, fracture happened before 2 months and now it is healing, and now in 1-2 months everything will be all right. So how to take positively things in life? ये मैंने बताया ना, कितना सिंपल बताया कि क्या बोलने का. कोई आके पूछे अरे आपको फ्रैक्चर हो गया, आपको बहुत पेन होता होगा, आपको ये होता होगा, वो होता होगा, तो क्या बोलने का? Yes, fracture happened before 2 months and now it has almost healed. Yeah. हाँ, तो अभी तो now it will take just 1 month or 2 months, and there is not such, now there is no pain at all, and it is healing. Life gives you all sorts of difficult situations. How to learn to take it positively and move forward. हाँ बराबर. हाँ चलो ऐसी बात करते हैं. ये क्या है? हाँ ये भी बात समझ में आ जाए. Impartial justice is the purest mercy of God. जो भी हाँ, भगवान से correct, है, correct. जो कुछ In simple language, let me tell you. Whatever happened is just. ये जगत में कोई भी चीज न्याय के बाहर नहीं है. Out of natural justice. But we can't see that thing, so we try to find justice. And when we try to find justice, our intellect will, and because of that intellect, it makes us more unhappy. इसलिए कृष्ण भगवान ने बोला बुद्धि को, बुद्धि के लिए बहुत बताया कि बुद्धि काम की नहीं है. मगर ये तो बहुत डिटेल में बात हो जाएगी. अभी क्या वो जो बताया पॉजिटिव, उसके ऊपर जाते हैं. आपको बाय चांस आपको फीवर आ गया, जब फीवर, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे बुखार आया, मुझे बुखार आया, मुझे बुखार आया. बराबर. भगवान की भाषा की बात कैसी है कि बुखार आने के कॉजेस का सेवन वो बहुत दिन से हो गया. कॉजेस का सेवन, कॉजेस के तो बहुत टाइम से पड़े थे ना. अभी वो बुखार बाहर आया और बाहर आके तो वो जा रहा है, तो एक्चुअली वो बुखार जा रहा है और हम क्या बोलेंगे? बुखार आया, बुखार आया. आपको बात समझे? अब इतनी अंदर भीतर अंडरस्टैंडिंग, विजन चेंज हो गई, तो क्या होगा? एनी टाइम यू विल हैव फीवर, you will have this understanding, oh, this fever is going now. And when this fever is going from the body, it's a good thing or bad thing? It's a good thing. So you will remain happy with it. You will do all the thing. You will take Tylenol or whatever the tablet medicine they are giving here. Or you will contact doctor also. There is no problem in that. But psychological effect, मुझे बुखार आया, I have fever. No, actually it is going. और फीवर जा रहा है तो अच्छी बात है ना. आ गया. हाँ, तो अच्छी बात है. Yeah. आई भी बस मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं. मानो अभी तो आप सब तो रिटायर्ड हो गए, यू आर ऑल रिटायर्ड, बराबर. कि आप बिजनेस करते हैं असली? क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना. स्टिल यू आर यंग. अभी मैं दूसरे बिजनेस करता हूँ. हाँ बराबर, अच्छी बात है. सत्संग की business. समझ गया, बराबर, अच्छी बात है. समझ गया. तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मानो कोई आदमी है, बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस के 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे, आइदर प्रॉफिट और लॉस. 2 बेटे होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं. कोई भी आदमी बिजनेस करेगा तो बिजनेस के 2 बच्चे हैं, 2 सन्स, आइदर प्रॉफिट और लॉस. तो एवरी टाइम प्रॉफिट तो नहीं होता है, कभी लॉस भी हो जाता है. तो अभी मानो कि कोई बिजनेस कर रहा है और उनको ऐसा लॉस हो गया. पार्टनरशिप में 2 पार्टनर है, बिजनेस कर रहे हैं और $1 मिलियन का लॉस हो गया चलो.
तो फिर दोनों पार्टनर कितनी वरी करेंगे? दोनों पार्टनर वरी तो करेंगे ना कि 2 मिलियन का लॉस हो गया, 2 मिलियन का लॉस हो गया। अभी देखो कि आप है, आपका पार्टनर है, आपको ऐसा 1 मिलियन का लॉस हो गया, तो आपको जब प्रॉफिट हुआ तो आप अकेले एंजॉय करते थे कि आप दोनों एंजॉय करते थे? बोलो, दोनों एंजॉय करते थे ना? अरे इसका प्रॉफिट होता है, इसके लिए मैं भी क्या करता। हाँ ना, वो तो बड़ा ऐसा लाइटली बता रहा हूँ, एक समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि व्हेन यू हैव प्रॉफिट, आप जब प्रॉफिट करते थे तब फैमिली मेंबर सब एंजॉय करते थे ना। तो मानो 5 फैमिली मेंबर्स है, 5 फैमिली मेंबर्स है, और आपका पार्टनर उनके भी 5 फैमिली मेंबर्स है, बराबर है? तो आप दोनों को टाइम हो गया है, तो कितने टोटल हुए? 10 हुए ना। तो 2 मिलियन का लॉस हुआ तो आपके पार्ट में कितना आया? डिवाइड बाय 10, 2 लाख का ही आया ना। मगर आप वरिश कितनी करते? 2 मिलियन की। और आप अकेले नहीं, घर के 10 लोग, ये 5 और उधर 5, पार्टनर के बाद 10 लोग 2 मिलियन की वरी करते। यू आर वरिंग फॉर 20 मिलियन। मगर आपको राइट कितना है? सिर्फ 2 लाख का वरी करने का राइट है। उसकी जब आप सब मिलके 20 मिलियन की वरीज करते तो हम मूर्ख नहीं? पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड लाइक दैट, इट्स अ फैक्ट कि वी आर वरिंग फॉर 20 मिलियन एंड यूर राइट। आपके पार्ट में लॉस कितना आया? 2 लाख का। यूर राइट टू वरी फॉर 2 lakhs ओनली। मैं लाइटली बात कर रहा हूं, ये धर्म की भी बात नहीं है, बट कॉमन सेंस। एक कोई भी आदमी थोड़ा अच्छी तरह से सोचे ना तो उनको ख्याल में आ जाए कि मुझे तो 2 लाख का ही चिंता करने का राइट है, तो उससे ज्यादा तो राइट है ही नहीं। फिर स्पिरिचुअलिटी रिलीजन की बात करें तो भी आगे की बात है कि 2 लाख का भी चिंता करने का राइट है। वो 2 लाख का लॉस उनके हाथ में है तो ही इज राइट, बट इज इट इन योर हैंड्स टू मेक प्रॉफिट और टू मेक लॉस? जब आपके हाथ में है तो यू नो राइट टू वरी। तो आपका राइट क्या है कि यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। व्हाट इज गोइंग टू हैपन यू डोंट नो। तो आपका राइट कितना है? यू हैव टू पुट फुल एफर्ट्स थिंकिंग पॉजिटिव, थिंकिंग ऑफ प्रॉफिट। So you put full efforts thinking of profit, and then as a result, if loss is there, accept it and go ahead. You make profit, you also can suffer some loss. It's common. हाँ, बराबर। लॉस है तो प्रॉफिट है। Yeah. ओम जी समझ में आया? जी हाँ। अभी पूछ लो, आपको कुछ पूछना है तो। तो ये एटीट्यूड, आपका विजन पॉजिटिव रहेगा ना तो बाहर नेगेटिव संजोग आएंगे, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस विल बी देयर बट इट विल नॉट अफेक्ट यू। एक कृष्ण भगवान की मैं बात करता था, ये जो बात है जब भगवान को पहचान कर भक्ति नहीं करते तो हम कृष्ण भगवान को जानते हैं, ये मुरली वाले कसर सब जानते हैं, भक्ति करते हैं। कृष्ण भगवान कैसे थे कि उनका जन्म हुआ ने तब से कृष्ण भगवान को फ्रॉम आउटसाइड ऑल द सर्कमस्टेंसेस आर अनफेवरेबल। बराबर है? भगवान को जो भगवान का जन्म कहाँ हुआ? व्हेन ही वाज बोर्न इन जेल। तो जेल में जन्म होना वो फेवरेबल सर्कमस्टेंस नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ तो क्या होगा? हु विल ट्रीट? एक जन्म होते ही उनको बास्केट में लेके जब यमुना पार जाना पड़ा, वो भी फ्लड में हो सकता, टोर्नेडो था, फ्लड था, उसमें जाके लेके जाना पड़ा, तो वो संजोग अच्छे नहीं थे। फिर गोकुल में बड़े हुए तो कितने सारे राक्षस उनको मारने के लिए आए, इतने छोटे बच्चे को मारने के लिए आते हैं। दे आर नॉट फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस।
फिर बड़े होके गए हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर गए तो कौरव और पांडवों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए गए। ओम जी बराबर है। तो पांडवों की ओर से कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए गए दुर्योधन के पास। तो भगवान ने दुर्योधन को बताया कि अभी धर्म के हिसाब से आपको ये राज्य पांडवों को दे देना चाहिए। वो कुछ बात सुनता ही नहीं था कि नहीं मैं देने वाला नहीं हूं। अभी भगवान खुद बोलते हैं, फिर भी दुर्योधन की एक बात सुनता नहीं है। बात समझे? अभी भगवान के सामने दुर्योधन क्या है? भगवान के सामने दुर्योधन तो कुछ भी नहीं है, कौन से खेत की मूली। फिर भी वो भगवान की सच्ची बात भी सुनता नहीं। तो क्या भगवान उसके बाद क्रोध करते? भगवान तो फिर से इतना वो झूठ बोल, वो अधर्म कर रहा है ऐसा जानते हैं, फिर भी भगवान बोल ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो मानता ही नहीं तो ऐसा कर दो 50% राज्य दे दे, आधा राज्य दे दे। वो बोलता नहीं आधा भी नहीं दूंगा। तो भगवान ने बोला ओके, वॉट एवर 5 टाउन्स 5 स्मॉल विलेजेस यू लाइक यू गिव। तो मैं एक तनिक सा भी लैंड देने वाला नहीं। तो ये प्रतिकूल संजोग नहीं थे, भगवान के लिए अधर्म के संजोग नहीं थे। फिर वही दुर्योधन बाद में जब किशन भगवान को पूछता है कि जानामि में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि में अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं बट आई कांट फॉलो। मैं अधर्म को भी जानता हूं बट छोड़ नहीं सकता हूं। तो क्या ऐसा क्यों? तो किशन भगवान क्या उत्तर देते हैं? उत्तर ही नहीं देते, मौन हो जाते हैं। तो मैं तो एक छोटा सा स्कूल में पढ़ता, ये स्टोरी मैंने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। 7th स्टैंडर्ड में तो तब मैंने सुना था, उधर वो सत्संग करने के लिए आए थे कोई साधु संत। तो मैं तो ऐसा सत्संग में नहीं बैठा था, हम फ्रेंड्स लोग बैठ आगे जा रहे थे तो इतना सुनाई दिया। तो उन्होंने इतना बताया कि भगवान ने उत्तर नहीं दिया। तो आगे जाके मुझे मन में विचार कि भगवान ने उत्तर क्यों नहीं दिया होगा। तो आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड। तो मैंने क्या सोचा कि जैसे स्कूल में वाइवा एग्जाम होती है, ओरल एग्जाम होती है, तो ओरल एग्जाम में टीचर कुछ पूछेगा और हमें नहीं आता है तो वी कीप मम। तो मैंने क्या सोचा कि दुर्योधन ने कृष्ण भगवान की परीक्षा ली, एग्जाम ली, एंड लॉर्ड कृष्ण ही वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड सो ही केप्ट मम। मुझे ऐसा लगा था। पर अभी समझ में आता है कि कृष्णवर मौन क्यों रहे थे। कृष्णवर को समझ में आता था कि दुर्योधन है उनकी कुबुद्धि है और उनको मैं सही बात बताऊंगा तो ही विल मिसयूज इट और ज्यादा स्लीप होगा, ज्यादा अधोगति में जाएगा। तो दुर्योधन ज्यादा अधोगति में नहीं जाए इसलिए भगवान उनको वो पूछता है, फिर भी बोलते नहीं है। तो भगवान का भला देखते कि नहीं देखते? भगवान का हित देखते हैं। वो ये बात हमें समझ में आती है। हम तो क्या बोलते हैं, कौरव के विरुद्ध में थे। अरे कौरव के पक्ष में थे भगवान और पांडवों के भी पक्ष में, दोनों का कल्याण कैसे हो वो देखते थे भगवान। और वो बात तो हमें समझ में नहीं आती। और भगवान ने अधर्म का विनाश किया, वो जो बात है ना, कैसी बात है कि भगवान ने अधर्म का विनाश किया तो सुदर्शन चक्र चलाया या किसी को मारा, कुछ किया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान किसी को मारेंगे क्यों? मगर कस्तूरबा को सारे जीवन में जो प्रतिकूल संजोग थे, भारी भारी संजोग थे, अधर्म के संजोग थे, इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस he remained undisturbed within, unaffected within। तो मानो कि वो शिशुपाल ने भगवान का इंसल्ट किया तो भगवान को इफेक्ट ही नहीं हुई। तो इफेक्ट नहीं हुई वो क्या हुआ? भगवान उनको जीत लिया। इतने सारे अधर्म के संजोग आए, दुर्योधन ने भगवान की सच्ची बात भी नहीं मानी, फिर भी भगवान का कोई रिएक्शन नहीं था, भीतर स्टेबिलिटी थी। दुर्योधन को दोषी नहीं माना। वो क्या है? अधर्म का विनाश किया।
So if negativity affects you in your life, negativity comes and you don't allow yourself be affected by, remain quiet and keep on dealing with whatever happens. वो अधर्म का विनाश हो गया. Yeah, That is the अधर्म का विनाश. That is you have destroyed अधर्म. yeah, तो इस तरह से कृष्ण भगवान ने अधर्म का विनाश किया था. yeah. और धर्म की जो स्थापना की वो क्या था कि whatever whoever the person instrumental in creating this adverse circumstances, अधर्म के संजोग को खड़ा करने में, Lord Krishna remain positive from within to that instrumental person. Yeah. तो भगवान बराबर है, भगवान के सबके प्रति पॉजिटिव रहे. वो पॉजिटिव रहे, वो क्या था? वो धर्म की स्थापना थी. ऐसा नहीं भगवान ने मंदिर बनाए, आश्रम बनाया, शास्त्र लिखे, ऐसा नहीं है. धर्म की स्थापना मीन्स he remained positive for all those persons who are instrumental in creating negative situation for him. Because अब देखो लास्ट पे जब वो किसने तीर मारा, जो एरो लगाया, तो भगवान ने उनको एरो मारने वालों को क्या बताया कि तू अभी मेरा वो ट्रीटमेंट करने का, ड्रेसिंग करने का छोड़ दे, अभी तू दौड़ के दूर भाग के चला जा, क्योंकि एनी टाइम बलराम will come, और if Balram will come to know that because of your arrow I am going to die, so he will kill you. तो ऐसा मृत्यु के समय पे भी भगवान क्या देखते हैं? तीर मारने वाला कैसे बच जाए वो देखते हैं. वो भला देखते नहीं देखते. इस तरह से भगवान ने धर्म की स्थापना की. और अभी हमारा खुद का देख लो कि हम कितनी धर्म की स्थापना करते हैं. खुद का देख लेने का. आपको बात समझ आई? हाँ, भगवान इस तरह से है. तो जब किशन भगवान की भक्ति करते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, भक्ति करते हैं, मैं टाइम वजह बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो बोलता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आप प्रश्न करते रहते हैं ना, मैं तो 4-5 घंटा भी बोलता हूँ. मुझे बहुत अच्छा है, बताइए. तो हम कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं, ऐसे बता कृष्ण भगवान की बात करो, जो भी है राम है, तो कृष्ण भगवान के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अभी ये जो मैंने आपको बताया ना, तो कृष्ण भगवान की जो बात नहीं थी कि सही भगवान की सही पहचान होनी चाहिए. तो हम सही में हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, मगर ये सब हम जानते ही नहीं. और ये सब जानते नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं? हमें जो बाहर से जब नेगेटिव संजोग आते हैं, तो नेगेटिव संजोग में जो इंस्ट्रूमेंट है उनके प्रति हम नेगेटिव हो जाते हैं. और भगवान की भक्ति करनी तो क्या मांगना चाहिए कि कृष्ण के मंदिर में गए तो कृष्ण को बोलना चाहिए कि हे कृष्ण भगवान, आज मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूं, तो आपके पास और क्या मांगू? आप तो भगवान है, और जो भगवान है इज नॉट एंटेंगल इन संसार. भगवान जो है संसार से मुक्त है, तो संसार की कोई चीज आपके मांग के क्या करो? धन संपत्ति है, हेल्थ है, ये तो सब संसार हो गया. तो आज मुझे आपका संसार नहीं मांगना है, मगर आज मैं आया हूं तो मुझ पे ऐसी कृपा करो कि जिस तरह से आप सारा जीवन, आपने जो सारा जीवन जिया, तो आपके सारे जीवन जन्म से लेकर आपका आयुष्य कर्म पूर्ण हुआ, वहां तक आपको चारों ओर से प्रतिकूल संजोग आए, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, एक्सट्रीम अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, एंड यू रिमेन अनडिस्टर्ब विद इट. और मेरी हालत कैसी है कि छोटे छोटे प्रतिकूल संजोगों में डिस्टर्ब हो जाता हूं, मैं सामने को वाले को ब्लेम करता हूं. तो आज मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं भी आपकी तरह सभी प्रतिकूल संजोग में भीतर से अनडिस्टर्ब रहूं, और आपकी तरह उनके प्रति पॉजिटिव भी रहूं. तो कृष्ण भगवान खुश नहीं होंगे कि पहला भक्त आया जो मेरे पास है वो मांग रहा है, उनको तो देना है, मगर आप जो है वो मांगते नहीं है. भैया सोचे भक्ति ऐसे करनी चाहिए. और भगवान की सही पहचान की बात कर रहा हूं ना, तो हम तो क्या मंदिर में जाते हैं तो मुरली वाले देखते हैं जो कृष्ण भगवान है, हाथ में धनुष भगवान राम है, ऐसा करके भक्ति करते हैं. मगर गॉड इज टेम्पररी और परमानेंट, गॉड इज विनाशी और अविनाशी.
भगवान कैसे है, विनाशी है कि अविनाशी है? अविनाशी, परमानेंट भगवान। मीन्स अविनाशी, बराबर। अभी भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, तो उनका बॉडी है, वो बॉडी तो टेम्पररी था कि नहीं था? सो बॉडी इज नॉट गॉड, मगर बॉडी एक मंदिर है, उनके भीतर जो चेतन तत्व, जो आत्मा तत्व पूर्ण रूप से खुला हुआ, अनवेल हुआ, वो भगवान है। मगर हमारी दृष्टि तो बाहर के पैकिंग तक जाके रुक जाती है, बाहर का चौड़ा तक जाके रुक जाती है, पैकिंग तक जाके रुक जाती है, मगर पैकिंग को पेनिट्रेट करके भीतर रहे हुए प्योर सोल तक, आत्मा तक जाती नहीं है। समझ में? तो सही में भगवान वो है। तो हम जो कृष्ण भगवान जो मानते हैं, और जो रियल कृष्ण भगवान है, वो ये है। और वहां तो हमारी दृष्टि जाती नहीं है, हम तो बाहर को ही देख के भक्ति करते रहते हैं। और गलत नहीं है, वो अच्छी बात है कि आप इस तरह भक्ति करते रहेंगे तो दूसरे काम में तो दूसरा तो थोड़ा दूसरे ऐसा किसी को दुख देने का काम तो थोड़ा कम करेंगे, पाप तो इतना कम करेंगे, इतनी भक्ति करेंगे, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वन स्टेप। मगर अल्टीमेटली आपको कृष्ण भगवान के भीतर और भगवान राम के भीतर के राम थे, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ। समझ में? तो मैंने जो पहले पूछा ना, को आपको भगवान होना है, तो आप सोचते पड़ गए हो ना, क्या क्या जाओ ओम जी, बराबर है कि भगवान हम कैसे हो सकते हैं? फिर बोले हमारे भीतर ही भगवान है, भीतर भगवान है, मगर आपको भगवान होना है। मैंने तो ऐसा पूछा था कि भगवान होना है, ये अशोक तुरंत हाँ बोले, हाँ होना है। मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कोई बोलते हैं तो अच्छा लगता है। विदाउट एनी डाउट ही सेड यस, होना है, तो बहुत अच्छी बात है। मगर दूसरे लोगों को तो अंदर डर हो जाता है, भगवान कैसे हो सकते हैं? मगर एक समझने के लिए गॉड इज परमानेंट, गॉड इज अविनाशी। तो अभी आप है, एट प्रेजेंट यू आर, आपको ये बॉडी मिला, उसके पहले भी आप कहीं थे, कहां थे, क्या थे, दैट यू आर नॉट डूइंग, पर कहीं थे। और आपका आयुष्य कर्म पूरा हो जाएगा, बाद में भी आपका कोई जगह पे जन्म तो होगा ना। दैट मीन्स एट प्रेजेंट यू आर, in past you were somewhere, and in future also you will be somewhere. That means you yourself, your true self is permanent, and permanent is God. तो आप खुद भगवान है ही, मगर अभी आपकी बिलीफ टेम्पररी में बैठी है, ओम जी में बैठी है, मैं ओम प्रकाश हूं, मैं ओम प्रकाश हूं। तो being a permanent, your belief is in temporary, and that's why you are enjoying and suffering temporary happiness and so on. सिंपल बात है, इतना सिंपल है अध्यात्म। अभी तो क्या है कि अभी हम फिर कब मिलेंगे आई डोंट नो, मैं मोस्टली एवरी ईयर आता हूँ, तो कब मिलेंगे पता नहीं है। तो आपको थोड़ा असाइनमेंट दे दूँ, होमवर्क दे दूँ, करेंगे क्योंकि आपका वो स्कूल में प्रैक्टिस छूट गई है ना, होमवर्क करने की, असाइनमेंट करने की। बस 2-4-5 मिनट का दे देता हूँ, करेंगे? हो पाएगा आपसे? हाँ या ना? हाँ। सुखी होने के लिए एक मास्टर की जो दादा बुआ ने दिया तो आपको देता हूँ। क्या हुआ था कि मैं यूरोप में था, तो जर्मनी में एसन में था। एसन में वो अफगान हिंदू लोग थे, अफगानी हिंदू टेम्पल, वहां सत्संग रखा था। तो पहले तो मैं सोच में पड़ गया, हिंदू और ये अफगानी हिंदू। तो फिर मुझे समझ में आया, कुछ बताया वो लोगों ने कि वहाँ बहुत 4-5 जनरेशन से हम लोग थे, मगर ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो फिर वो अफगानिस्तान छोड़ के हम जर्मनी आ गए, और जर्मन गवर्नमेंट ने असाइलम दिया, सब हेल्प किया सब, तो अभी हम यहाँ स्टेबल हो गए। चलो ठीक है। तो वहाँ सत्संग था, और सत्संग के बाद मुझे वापिस फ्रैंकफर्ट जाने का था। तो मैं ट्रेन में जाने वाला था, ट्रेन में 2 घंटा लगता है।
तो किसी को पता चला कि ट्रेन में जाने वाला, तो मेरे पास आए, क्या वापस ट्रेन में जाने वाला हूँ? हाँ। तो मैं बाय रोड जाने वाला हूँ, बाय रोड भी 2 घंटा ही लगेगा, तो आई विल ड्रॉप यू एट योर प्लेस, आपका जो भी है, जहाँ भी आप रहे वहाँ। तो मैं सोचा बहुत अच्छी बात है, मैं तो इंडियन हूँ ना, तो मेरा दिमाग चलता है कि आई विल सेव माई 20 यूरोस ट्रेन फेयर का। तो मैंने तो हाँ बोल दिया, और वो घर यहाँ से लेके जाएगा, घर पे छोड़ के जाएगा। तो वहाँ भी ऐसा ट्रेन स्टेशन वो नजदीक ही था, मैं वॉक करके ही जाने वाला था, मगर इतना नजदीक था, मगर वो घर पे ड्रॉप करने की बात करें तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो मुझे भी 2 घंटा लगे, इसमें भी 2 घंटा लगे, ओके आई विल कम विथ यू, थैंक यू। फिर सत्संग पूरा हुआ, तो अबाउट 7:15 हम लोग निकल रहे थे। तो ऐसे कार में बैठ के जा रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि आई वॉज स्टडीइंग हियर बिफोर 12 years. At that time, one of my friends who was very close to me, today he called me accidentally, and he's living on at halfway or intersection and not far from the intersection, and he invited me for tea. So if you don't mind, we will go there and it will take half an hour more. तो अपना इंडियन लोग बोलते हैं हाफ एन आवर, तो आई काउंट 1 hour। तो मैंने बोला 7 बजे निकले, 9 बजे पहुंचने वाले, 9 की 10 हो गया, तो 10 तो ओके है, और एक्स्ट्रा बोनस तो मुझे चाय मिलेगी, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? तो मैंने हाँ बोल दिया, बराबर है, कि मुझे कुछ खर्च करने का ही नहीं था, मैं भी पक्का सिंधी हूँ ना। तो कुछ खर्च पाए, जेब में कुछ निकालने का नहीं है। तो मैंने हाँ बोल दिया। फिर उसने उनसे बात की, और फिर मुझे पता है वो क्या हम जाएंगे। अभी क्या उनके फ्रेंड ने उनको बताया, उसको अपने फ्रेंड को बताया कि आई एम कमिंग एंड विथ मी माय स्पिरिचुअल मास्टर इज आल्सो कमिंग, माय स्पिरिचुअल मास्टर इज आल्सो कमिंग। तो उसने ओके, तो उसने बताया कि टेल हिम दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी रिलीजन, सो प्लीज टेल हिम दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीजन। तो वो मुझे कैसे बोलेगा ऐसा कि मुझे ऐसा बोला है? तो उसने मुझे कुछ बोला नहीं। फिर हम उनके घर पे गए, तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर आए, मुझे अच्छी तरह से ग्रीट किया और जाके सोफा पे बिठाया, और दोनों यंग थे, अबाउट 28-26 ऐसा। फिर वो जो लड़का है मेरे पास आया और मुझे बताया कि यू आर वेलकम इन अवर हाउस, बट just I want to tell you that we both are not interested in religion, so please don't talk anything religious with us. बराबर है। अभी कोई ऐसा बोलेगा तो इंसल्टिंग लगेगा, एक तो आपके घर पे बुला ऐसा बोलेगा। और मैंने सोचा भी ये जर्मन लोग हैं, बहुत फ्रैंक है, तो फ्रैंकली ब्लैक एंड व्हाइट में बोलते हैं। तो मैंने बोला ओके, आई विल नॉट टॉक एनीथिंग रिलीजियस, आई विल टॉक एवरीथिंग साइंटिफिक। तो दोनों खुश थे। तो मैं सोफा पे बैठा था, वो सामने बोर्ड पे ऐसा नीचे कारपेट पे वो चारों बैठ गए, बातें करने लगे। तो आधा घंटा जैसा हुआ, 20-25 मिनट हुई, तो थोड़ा हिलने लगे, तो मुझे लगा अभी चाय बनाने के लिए जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं उनके घर पे आया हूँ, उनकी चाय पीऊंगा और फिर चला जाऊंगा, ऐसा कैसे चलेगा? मैं गया तो उनको बेनिफिट तो होना चाहिए, ऐसा चाय पी के निकल जाऊं तो अच्छी बात नहीं है, अशोक जी, बराबर है। तो मैंने कहा अभी चांस है बात करने का, तो बाद में तो चाय पी के निकलने का होगा। तो मैंने कहा वो चाय बना के जाए उससे पहले बात करनी पड़ेगी। तो मैंने भी क्या सोचा कि द वे ही टोल्ड मी इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो व्हाई आई कांट आस्क हिम इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैंने पूछा कि इफ यू डोंट माइंड आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। तो वो से ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मैंने सीधा पूछा ब्लैक एंड व्हाइट में, व्हाई यू डोंट बिलीव इन रिलीजन? तो दोनों ने क्या बताया कि वी बोथ आर क्रिश्चियन and we both were attending mass regularly, but we observed that it's a big business, so now I don't believe in Christianity and I don't believe in God even. बराबर वे उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, हाउ आई कैन डिनाई इट? तो उसने बताया ना, तो मैंने उनको धीरे से बताया कि यू नो माय मास्टर दादा भगवान व्हाट ही इज सेइंग।
तो दादा भगवान का एक बात थी कि व्यापार में धर्म होना चाहिए, मगर धर्म में व्यापार नहीं होना चाहिए। अभी तो मैंने उनको सिंपल इंग्लिश में बता दिया कि इन बिजनेस एथिक्स मस्ट बी देयर, बट इन रिलीजन देयर शुड नॉट बी एनी बिजनेस। तो दोनों इतने खुश हो गए तो 5 फुट नजदीक आ गए, दूर बैठे थे 15 फुट, तो 5 फुट नजदीक आ गए। तो उनको पहले डर था कि कोई धर्म की बात करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो बोलता है यस यस यू आर 100% राइट, इन योर क्रिश्चियनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस हैज एंटर्ड। बराबर है। अभी उनको क्या बोलूं आगे तो मैंने बताया उनको कि नॉट ओनली इन क्रिश्चियनिटी, इन ऑल द रिलीजियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड business has entered, but for that you can't blame any person. So he stared at me, so because it's a influence of time, कलयुग का प्रभाव हम बोलते हैं, कलयुग का प्रभाव, कलयुग आ गया तो अभी कलयुग पर उनको पता नहीं चलेगा। मैंने उनको बताया इट्स ए इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। तुमको बहुत अच्छा लगा, तो मुझे भी हुआ कि अभी लोहा थोड़ा गर्म हुआ है तो आई कैन हैमर। तो कहते हैं मुझे हुआ चलो अभी गर्म हुआ, अभी वो बात उनको जतने लगी। तो मैंने उनको पूछा सीधा कि यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, क्या पूछा कि यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, तो दोनों ने बताया ऑफ कोर्स। तो मैंने बताया कि आई कैन गिव यू वन मास्टर की व्हिच माय मास्टर दादा वन गिव मी, बट फॉर दैट यू विल हैव टू स्पेयर 3 to 5 minutes daily। तो दोनों ने एकदम रॉब से बोल दिया यस वी विल। तो मैंने भी ऐसा बोल तो भी दिया, फिर मैं भी सोचूं भाई अब उनको क्या दूंगा, बिकॉज़ दे वांट एवरीथिंग साइंटिफिक। तो लड़के ने क्या बताया कि यू कैन गिव अ मास्टर की, बट इट शुड नॉट बी रिलीजियस एट ऑल। तो अभी मुझे क्या बोलना पड़ेगा, नो आई विल गिव यू साइंटिफिक। फिर मैंने उनको बताया कि I know that you don't believe in God, and I have no problem with that. You are independent. Whether you want to believe, you believe. You don't want to believe, don't believe. But do you believe in Mother Nature? Yes, we do. तो मैंने उनको सिंपल बताया कि in the morning when you wake up, you just ask for the strength from the Mother Nature, or the God you believe, but you are not believing in God. So ask for the strength, that give me the strength so that I do not hurt any living being in this world by my thoughts, by my speech, or by my action. Just ask for this strength for 5 times, and then you resolve within, you determine within that during the whole day I don't want to hurt any living being. So can you do this thing? Okay, yes, I can do. This is logical. This is not religious, I can do. Sorry, समझ में कि this is not religious, this is logical. तो लड़के बहुत स्मार्ट थे, उनका माइंड का रिवोल्यूशन बहुत फास्ट चल रहा था। हाँ ना, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। I have to stand. हाँ ना, नो प्रॉब्लम। Please forgive me. वो आज का दिन ही है, कल से नहीं होगा, आपको कल से नहीं होगा। Thank you. Please continue. हाँ, तो क्या हुआ तो मुझे उसने ऐसा बताया कि आई कैन डू इट। सपोर्ट है। तो मुझे हुआ कि भाई इतना इसने बताया है तो थोड़ा आगे भी बताओ। हम तो लोभ वाले हैं, ग्रेडी है ना, इंडियन लोग ग्रेट थोड़ा होता है। तो अब बिजनेस में कमा तो और ज्यादा कैसे कमाओ, तो मुझे इतनी बात सुन ली तो फिर ज्यादा बताओ। तो मैंने उनको बताया कि बाद में जब रात को आप सो जाओ तो even though you ask for the strength for 5 times, you are determined within that, you are resolved within that, no, I don't want to hurt any living being the whole day. Still it may happen that you may hurt somebody knowingly or unknowingly. Yes, it can happen. So if you say, then what to do? If before you sleep, you just ask for forgiveness if you hurt anybody. तो लड़की भड़क गई, उनको लगा कि to ask for forgiveness is a religious thing। उनको क्योंकि एकदम वो हो गया था, धर्म के लिए बहुत ही अभाव हो गया था। तो शी टोल्ड मी
I accept that I hurt somebody, but why to ask forgiveness? मैं भी सोच में पड़ा, ऐसा तो कसम कोई नहीं करेगा. And then she added, you tell me scientifically, not religiously. अब उनको क्या बोलने का, तो एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ. तो मैंने बताया कि से you have gone out for camping for the whole day, and in the night when you are back to your home, what you will do? So I will first take shower. Okay, you will take shower. Oh, I can understand. But what you will do with your dress? So I will put it in the laundry bag. Why in the laundry bag? Why will you not put it back into the hanger? So no, I wear it for the whole day. It becomes dirty. So I told her that the same way, when you hurt somebody knowingly or unknowingly, your inner dress is getting dirty, and you are asking for forgiveness, you are asking for apology, is the laundry for your inner dress. तो बोलते हाँ ओके now I will do it. Now I will do it. फिर वो उठी, चाय बनाने के लिए किचन में गए, तो किचन के डोर तक गए, फिर वापस आ गए. तो मुझे भी डर लगा कि कुछ नया निकालेगी, कि प्रश्न ऐसा करती थी. तो मैंने उनको फिर पूछा, उनको बताया ना. वो फिर नजदीक आके एकदम नजदीक आके मेरे पाँव के पास बैठ गई. फिर मुझे बोलने लगी, you were telling me that you will not talk anything religious. Okay, you didn't talk anything religious, you are talking everything logical. But you also told me that you will talk everything scientifically. So in the morning I am asking for the strength, and in the evening I am asking for forgiveness. Where is the science? अशोक जी समझ में? बहुत भारी थी. ऐसा वो लड़की बहुत भारी थी. हाँ, उनका क्वेश्चन सब तेज दिमाग की थी. वो बोलती है कि in the morning I am asking for the strength, and in the evening I am asking for the forgiveness. Where is the science? But you are telling me that you will talk everything scientifically. Where is the science? मैं भी सोचने पड़ गया, ऐसा कोई पूछता नहीं इंडिया में, कनाडा में भी नहीं पूछता है. आप लोग तो बहुत सीधे सुनते रहते हैं, इतने सीधे लोग तो कहाँ मिलेंगे मुझे. आप लोगों के साथ तो बहुत इजी हो जाता है, आप आराम से सुनते, आर्गुमेंट भी नहीं करते, कॉन्ट्राडिक्शन भी निकालते. तो फिर मैंने उनको बताया, उनको जो लड़का था ना वो मैकेनिकल इंजीनियर था, वो लड़की फाइन आर्ट्स की ग्रेजुएट थी, मगर लड़की का दिमाग बहुत तेज चलता था. तो मैंने बताया उनको कि यू नो तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन. तो उनको पता नहीं था. वो लड़के ने बताया कि आई नो रिएक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मैंने बताया दिस न्यूटन्स लॉ इज साइंटिफिक लॉ. Yes, it is scientific law. Then I asked her, any scientific law is universal? So she said, yes, it's universal. Correct? So मैंने बोला the same Newton's universal third law is applicable here also. Then they both stared at me. तो मुझे समझ में आया, उनको भी समझ में नहीं आया. तो मैंने बताया, during the whole day, what is your action? Your action is, I don't want to hurt any living being. So as a reaction, what Mother Nature will do? Mother Nature will give you such circumstances that nobody will hurt you. And when nobody will hurt you, what will remain with you? Happiness. तो कन्विंस हो गया, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया. तो अभी से 7-8 साल हो गया, अभी भी करते हैं. और 1 साल के बाद फोन पे बात हुई नहीं, तो मैंने पूछा उनको, 3 महीने के बाद पूछा था कि मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है, होमवर्क दिया है, आर यू डूइंग इट? तो दोनों का यस वी आर डूइंग इट. तो मुझे भी क्या, इंडियन है उनको बोलते हैं ना, तो बोले हाँ करते हैं. फिर पूछे कितने दिन करते हैं, तो वीक में 1 बार करते हैं, ऐसा बोलेंगे. तो मैंने उनको भी पूछा कि हाउ मेनी डेज यू मिस्ड इट? तो नॉट ए सिंगल डे. फिर 1 साल के बाद गया तो भी पूछा कि आप 1 साल से करते हैं, आर यू बेनिफिटेड? तो लड़के ने बोला यस आई एम बेनिफिटेड, कि बिफोर आई हैव टू डू एनी वर्क, the first thing that will strike in my mind is negative. Now day by day I am becoming positive. और लड़की ने आ गई, तो नहीं तो लड़के को पूछने वाला ही नहीं था कि कुछ नया निकाले, तो पूछने वाला ही नहीं था. वो सब सामने से बोलेगा आई एम ऑल्सो बेनिफिटेड. तेरे को क्या फायदा हुआ?
तो बोलते हैं कि माय इनर स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज। तो मैं भी सोच में पड़ गया, इतनी बड़ी बात करती है माय इनर स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ये थी 26 ईयर की, मगर वो स्किनी थी, तो 18 ईयर्स की लगती थी। तो कोई इतनी जर्मन लड़की है, इतनी दुबली पतली है, वो समझती है कि नहीं समझती है कि ऐसे ही बोलते। तो मैंने पूछा कि व्हाट यू मीन बाय इनर स्ट्रेंथ? सो व्हाट शी रिप्लाइड कि बिफोर इफ एनीथिंग हैपन्स then I will get disturbed. But now, whatever happens, I am not getting disturbed. कितनी अच्छी बात है। तो आपको ये होमवर्क असाइनमेंट देता हूँ कि सुबह में उठ के 5 बार जो भी भगवान को मानते हैं प्रार्थना करने का कि प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, इतना कर लेना और रात को माफी मांग के सो जाने का। बराबर? चलो चलो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय